All right, so let's start with the last. So everyone can see the screen. Yes, sir. All right. So yesterday we had started with the concept of uh, waves, the wave properties of particles. So if we already know that waves have a particle nature, right? So yesterday we had finished the part where we studied the particle nature of waves. So it was thought that if the reverse could be possible, so indeed the reverse is possible. Moving particles having velocities or momentum, they have waves associated with them. So this was discovered by Louis de Broglie, and these waves have certain wavelength, which is known as a de Broglie wavelength. So yesterday we saw this formula where the de Broglie wavelength formula is given by h by total momentum of the body, where the total momentum of the body can be written as gamma mv, where gamma is nothing but under root 1 minus v square by c square. M is the mass of the body, and v is the velocity of the body. So I also told you that this de Broglie wavelength is actually meaningful only for those particles in the microscopic world, electrons, neutrons, neutrinos, etc. Because even though we also have a momentum, we also carry a mass, but the de Broglie wavelength that's associated with bodies like us won't be sufficient to actually uh, to be able to be visualized. But the de Broglie wavelengths that are actually associated with particles in the microscopic world are actually significant, right? So moving particles have a wavelength associated with them, and that is known as de Broglie wavelength. So now we will slowly build up upon this concept of particle waves, right? So the waves that are associated with moving particles. So let's try to slowly build up upon these concepts. So matter waves. So what do we actually mean when we say that moving particles have a wave associated with them? Basically, we are broadly defining them to be matter waves. Why matter waves? Because they are associated with something that is having mass. Matter. What is matter? Something that has mass. So any waves that are associated with mass are matter waves. So what do we actually mean by them? What are matter waves? So when it comes to light waves, so in the previous classes we studied a lot about light waves. So what was varying in those light waves? What are light waves? EM radiation. So what was varying in those light waves? Magnetic electric fields. Magnetic electric fields oscillating in perpendicular directions. So you could actually measure the electric and magnetic fields, right? And you could then you could then find out the intensity of the light wave by determining the amplitude of the electric field, right? So you could do that. Similarly, in the case of sound wave, we all know that sound waves then require a material to propagate, and in that propagation, there's compression and rarefaction. I hope you all know what is compression and rarefaction. आपने पढ़ा होगा ये, definitely पढ़ा होगा compression, rarefaction. Anyone? Yes, sir, बढ़ा है. Good. So that is the variation of pressure. Compression, rarefaction is nothing but variation of pressure. So you can measure that as well. The how the sound wave propagates inside the material, we can measure that as well properly. Compression, rarefaction can be studied. Then the kind of waves that you see when you throw a stone in the water, then the kind of waves that you see, that those are the waves in water, the water waves. So what varies? The amplitude of those waves. What is the amplitude there? The height, right? The height inside the water, that varies for the waves inside the water. So you can measure that as well. So either it is the light wave, or it is the sound wave, or it is the water wave. You can actually see and measure what is happening, right? You can experimentally measure that. But what about matter waves? Number one, you can't see them. So how can you measure them, right? So this forms the basis of quantum mechanics, something that forms a part of your unit 4 quantum mechanics. So this discussion will form the basis of quantum mechanics. So listen to it carefully. So matter waves are now, like as I said.
आपकी EM waves थी, they were defined by electric and magnetic fields, right? So matter waves are defined by a quantity known as a wave function, right? So matter waves are defined by a quantity known as wave function. So once we'll study, we'll go through certain examples also just before we start with the Heisenberg's uncertainty principle. So हम थोड़ा सा एक example हम देख लेंगे वहाँ पे भी how to write the wave function there. Otherwise, our unit 4 is totally quantum mechanics. So quantum mechanics के अंदर we will be dealing with wave functions only. So for now, you can simply know that a matter wave can be represented by a certain quantity known as a wave function, right? So what does a wave function represent now? A wave function is nothing but your position coordinates at a particular instant t. So basically, a wave function is nothing but the position x, y, z of the particle at the a particular instant time t. That is your wave function, and it is given by a symbol psi, the Greek symbol psi. Now, as I already told you in a few classes back, what we use to study in classical theory is not valid quantum mechanically. अगर आपको याद हो, मैंने आपसे ये बात आपको पहले बताई थी कि हमको क्लासिकली ये सिखाया जाता है कि इट इज easily manageable to determine both the position and the momentum of any particle at any instant t. Quantum mechanically, this is not valid. We cannot, in all probability, with all certainty, determine both the position and momentum of the particle simultaneously. It is impossible. This is the discussion which we will be doing tomorrow in Heisenberg's uncertainty principle lecture, right? सो यू शुड नो दिस डिफरेंस कि हम लोग जो पढ़ते हैं स्कूल में, हम लोगों ने जो बेसिक पढ़ा है अपना, सबसे बड़ा एग्जाम्पल इसका यही है, व्हाट वी यूज टू स्टडी इन स्कूल। आप लोगों ने अपनी केमिस्ट्री क्लासेस में स्कूल में क्या पढ़ा है, दैट द इलेक्ट्रॉन इज सराउंडिंग योर न्यूक्लियस एंड इट इज मूविंग इन सर्कुलर मोशन। ऐसा नहीं होता। दिस इज जस्ट टू मेक अ लाइफ सिंपल। There is no structure of atom in which electron is going around in circular motion around the nucleus. An electron actually is found around the nucleus as a probability cloud. जो इलेक्ट्रॉन होता है आपका, इट इज फाउंड अराउंड द न्यूक्लियस एज एन प्रोबेबिलिटी क्लाउड। यू कैनॉट सिंपली से कि इस टाइम पे वो इस डायरेक्शन में सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, नहीं, ऐसा यू कांट से दैट। बट व्हाट यू कैन से इज कि उसकी प्रोबेबिलिटी इतनी है कि वो इस एरिया में इस पोजीशन पे है अराउंड द न्यूक्लियस। तभी उसको प्रोबेबिलिटी क्लाउड बोलते हैं कि उस क्लाउड में कहीं भी हो सकता है। सो दिस इज डिफाइंड बाय द वेव फंक्शन। आपका वो जो प्रोबेबिलिटी होगी उस इलेक्ट्रॉन की, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, जो प्रोबेबिलिटी होगी आपकी उस इलेक्ट्रॉन की, सो इट विल बी गिवन बाय द वेव फंक्शन ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन। सो सिमिलरली कोरिलेट इससे करिए आप, दैट वेव फंक्शन ऑफ एनी पार्टिकल एट द टाइम t simply gives the likelihood or probability of finding the particle at that position. सो वी कैनॉट से कि इलेक्ट्रॉन या कोई पार्टिकल यहाँ पर इस पोजीशन पे है। वी कैन सिंपली से कि उसकी प्रोबेबिलिटी इतनी है कि वो यहाँ पे है। अगर 100% प्रोबेबिलिटी तो मतलब वो यहीं पर ही है, अगर 10% है तो मतलब बहुत कम है, जस्ट लाइक दैट। सो अनलाइक एम्पलीट्यूड, या फिर जैसे आपका EM वेव में है, प्रेशर साउंड वेव में है, या हाइट आपका वाटर वेव में है, विच आर मेजरेबल, फाई को आप मेजर नहीं कर सकते। फाई इज नॉन मेजरेबल, आपको मेजर नहीं कर सकते। ये बस खाली आपका ये मुझे प्रोबेबिलिटी डिनोट करता है। तो दिस इज जस्ट अ मैथमेटिकल वे टू राइट द थिंग। दिस इज जस्ट अ मैथमेटिकल वे of to write one mathematical formula to write the position and position of the particle at certain coordinate or certain time coordinate. But what you can actually measure is the phi mod square. Phi mod square. This is the probability density. This actually gives you a certain numerical value, and that numerical value is nothing but the probability. So phi का कोई physical significance नहीं है, but phi mod square actually gives you the probability to find the particle at any position x, y, z at time t, right? So, as I said again, this is the basis of your quantum mechanics, and we will study all these things in detail when we start with the unit 4 of your syllabus. But as of now, you can simply relate to the fact that there is nothing as to a particle, certain particle position at a certain time t. There is only probability in the microscopic world. There is only probability, and this is the discussion. This is the basic from the postulate of quantum mechanics, the basic postulate of quantum mechanics.
So matter waves are represented by phi, number one, and the mod square of that phi will give you the probability to find that particle at a certain position. That's it. Now, what you need to understand also is the fact that हमने probability की बात कर ली कि हमने कि हमारा particle की probability है कहीं कि हमको वो इस position में मिलेगा. So अब difference क्या आ जाता है कि there's a difference of between the probability of an event and the event itself. Probability to find the electron और electron का वहाँ होना. Probability कि electron यहाँ पे है और electron का यहाँ वहाँ होना इसमें फर्क है. Probability of the event and the event itself. अब suppose आपका to find the electron is an event that we are observing. To find the electron is an event. ठीक है. अब इलेक्ट्रॉन कैन ईदर बी एट द प्लेस या फिर नहीं होगा. सिंपल यही तो होगा. जो हम पोजीशन ऑब्जर्व कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन या तो उस पोजीशन पे होगा या नहीं होगा. सिंपल एज दैट. यही तो प्रोबेबिलिटी है. सो ईदर द इलेक्ट्रॉन कैन बी एट अ प्लेस और इट वोंट बी देयर. सिंपल. ऐसा कोई केस नहीं होगा कि 20% इलेक्ट्रॉन है 80% नहीं है. ये नहीं होगा. दिस इज द डिफरेंस. दैट इज व्हाई देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट एंड द इवेंट इटसेल्फ. So there won't be any case in which there's a 20% electron और 80% वहां पे नहीं है. ऐसा नहीं होगा. It is absurd. But yes, there can be a possibility कि 20% probability है कि इलेक्ट्रॉन या तो वहां पे पूरा है या फिर नहीं है. So ये भाई बारीक सा फर्क है जो आपको समझ में आना चाहिए. So this probability to find the electron at any position, चाहे वो 10% probability हो, 15 हो, 20 हो, 30 हो या 100% हो, so that is given by your phi mod square phi. This is the basis of quantum mechanics, which we will study in thorough detail once we start with your unit 4. All right. So anyone has a doubt till here? किसी को समझ में नहीं आया हो कि what is phi? What do we actually physically mean by phi? So anyone has a doubt till here? Anyone? किसी को कोई doubt हो? निपुंजय, कोई doubt? यस सर, ये इवेंट वाला थोड़ा समझ में नहीं आया. हाँ मतलब देखो इवेंट है आपका. आपको इलेक्ट्रॉन यू हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रॉन एट अ पर्टिकुलर पोजीशन. ये हमारा इवेंट है. जैसा आपको याद होगा हमने एसटीआर में हमारे इवेंट क्या थे. यू आर ऑब्जर्विंग अ लाइट, फ्लैश लाइट. याद आया आपको? आपकी रेल कार में हमने क्या जैसे हम टाइम रिलेशन स्टडी कर रहे थे तो हमारा इवेंट क्या था. टू ऑब्जर्व अ फ्लैश ऑफ लाइट. ये हमारा इवेंट था. ठीक है. तो ऐसे ही हमारा अभी यहाँ पे इवेंट क्या है कि हमारा इवेंट है टू एक्चुअली फाइंड द इलेक्ट्रॉन. सो अब प्रोबेबिलिटी होगी कि या तो इलेक्ट्रॉन वहां पे है या नहीं है. ठीक है. तो ये फर्क है. ऐसा नहीं होगा कि देर इज 20% ऑफ द इलेक्ट्रॉन. एक इलेक्ट्रॉन है और वो 20% ही वहां पर है, 80% कहीं और है. तो मतलब ये कहने का फर्क है. प्रोबेबिलिटी का मतलब ये होता है कि ईदर द इलेक्ट्रॉन इज देयर इन ऑल प्रोबेबिलिटी और इट इज नॉट देयर. या फिर उसके चांसेस कितने हैं. अगर इफ वी से कि देयर इज अ 30% चांस टू फाइंड द इलेक्ट्रॉन तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी उसकी वहां पे होने की बहुत कम है. 10% है, 15% बहुत कम है. इफ वी से देयर इज अ 100% प्रोबेबिलिटी टू फाइंड द इलेक्ट्रॉन एट एनी पॉइंट इसका मतलब कि वो डेफिनेटली वहां पे मिल सकता है. इट विल बी देयर. ये फर्क है. प्रोबेबिलिटी सिंपली गिव्स यू द लाइक्लीहुड टू फाइंड द टू ऑब्जर्व एनी इवेंट कि वो वहां पे इवेंट एक्चुअली में हो रहा है कि नहीं हो रहा है. लाइक प्रोबेबिलिटी एक्चुअली गिव्स यू द लाइक्लीहुड कि आपके वहां पे वो आपका जो भी आप इवेंट ऑब्जर्व कर रहे हो. इस केस में हम ऑब्जर्व करना चाहते हैं इलेक्ट्रॉन को कि हमारा इलेक्ट्रॉन इस पोजीशन पे है कि नहीं. तो इफ से तो अगर हमारा फाइव जो हमारा है उस वेव फंक्शन हमारे इलेक्ट्रॉन का जो वेव फंक्शन है अगर उसका लाइक्लीहुड जो है मान लीजिए उसका हमारा 5 मॉड स्क्वायर मान लीजिए आपका 1 आ जाता है बिकॉज 5 मॉड प्रोबेबिलिटी है. इट कैन ईदर लाई बिटवीन 0 and 1. राइट. प्रोबेबिलिटी कैन लाई बिटवीन 0 and 1. तो मान लीजिए आपका 5 मॉड्स पर निकल के आता है 0.95. तो इसका मतलब ये है कि 95% चांस है कि आपका इलेक्ट्रॉन उस पोजीशन पे है एक्स वाई जेड एट टाइम टी. अगर एक्स वाई जेड एट टाइम टी पे 5 मॉड स्क्वायर आपका 0.1 निकल के आता है तो इसका मतलब ये है कि बस 10% ही चांस है कि आपका है. बेसिकली वहां पे नहीं है. 10% ही चांस है ना. तो मतलब बहुत कम प्रोबेबिलिटी आपको वहां मिलेगा. ये मतलब. राइट. जस्ट एन एग्जाम्पल. ओके. हाँ ये जस्ट एग्जाम्पल है. ये जस्ट टू टेल यू ये जस्ट एग्जाम्पल है. बाकी डिटेल्स तो हम सी क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ेंगे. ऑलराइट. यस सर. सर इसमें साई साई की जो मॉड स्क्वायर है तो वो यूनिटलेस होगा. हाँ यूनिटलेस है. वेरी गुड. यस यूनिटलेस है. ये अभी आप जो क्वांटम मैकेनिक्स से पढ़ेंगे इसमें हमारा इमेजिनरी पार्ट भी आता है. जैसे जब जब आप फाई का फॉर्मुलेशन लिखेंगे ना आप लोग तो फाई का पूरा फॉर्मुलेशन होगा जिसके अंदर एक इमेजिनरी पार्ट भी होगा.
तो फाइव मॉड स्क्वायर इज नथिंग बट फाइव कॉन्जुगेट इनटू फाइव। तो फाइव में एक आपका इमेजिनरी पार्ट है, फाइव कॉन्जुगेट के अंदर वो माइनस इमेजिनरी कॉन्जुगेट माइनस इमेजिनरी आ जाता है। तो आई इंटू माइनस आई गिव्स यू अ रियल पार्ट, वो पूरा आपका वाली वैल्यू आपकी इमेजिनरी वाली पार्ट की चली जाती है। सो इट विल सिंपली गिव यू अ रियल नंबर। सो वो रियल नंबर विल बी डायमेंशनलेस। यू आर राइट। गुड। एनीवन ऐसा डाउट? और किसी कोई क्वेश्चन हो? नहीं? ओके। सो नाउ वी विल सिंपली सी हाउ टू राइट द वेव इक्वेशन। अब हमने ये पढ़ लिया है कि हमारी ये मैटर, हमारी जो हमारा ये मैटर हमारा वेव है, तो अब इसकी वेव इक्वेशन हम कैसे लिखें, ठीक है? सो now what is a wave equation? What do we mean by a wave equation? So wave equation is nothing but a mathematical formulation which is giving us the displacement of the particle with respect to time and a position coordinate. ये हमारा पोजीशन हमारी, मान लीजिए अब हम लेट्स जस्ट एंड वी आर कंसीडरिंग ओनली टू डायमेंशंस हियर। सो मान लीजिए हमारी एक्स पोजीशन पे और टाइम टी पे क्या डिस्प्लेसमेंट है इन द वाई डायरेक्शन। सो दिस इज योर वेव इक्वेशन। आगे हम देखेंगे कि वो कैसे फॉर्मुलेट हो रही है। सो अब डी ब्रॉगली जो वेव्स है हमारी, दे आर मूविंग, दे आर एसोसिएटेड विद अ मूविंग बॉडी, ठीक है? सो वी कैन अज्यूम कि जो हमारी बॉडी की जो वेलोसिटी है, इट इज द सेम एज द डी ब्रॉगली वेव वेलोसिटी। जो हमारी डी ब्रॉगली वेव की जो वेलोसिटी होगी, इट शुड बी द सेम एज द बॉडीज मूविंग वेलोसिटी। आफ्टर ऑल हमारी हमारी बॉडी के मोशन, मतलब पार्टिकल के बॉडी के मोशन से ही तो डी ब्रॉगली वेव निकल रही है। बट इज दिस ट्रू? राइट, बट इज दिस ट्रू? कैन वी अज्यूम कि जो हमारी मैटर वेव जो हमारी हैं उनकी जो वेलोसिटी है, क्या वो सेम एज अ बॉडीज वेलोसिटी है? सो ये हमें अब चेक करना है, राइट? So let's just denote the velocity of d Broglie wave as Vp, right? Let's just denote them as Vp. So what can be right? What was velocity? क्या फॉर्मूला होता था वेलोसिटी का? फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, right? Nothing but frequency into wavelength, nu into lambda. This is the formula of velocity. So nu is the frequency of the wave associated with the body, and lambda is the de Broglie wavelength. अब लैम्डा तो वी ऑलरेडी नो, लैम्डा तो हमने ऐसे निकाल लिया, ये लैम्डा तो हम ऐसे निकाल चुके हैं। सो हाउ टू फाइंड नू? कुछ नहीं करना, एच नू को इक्वेट किया आपने टोटल एनर्जी ऑफ द बॉडी। तो दिस वाज योर टोटल एनर्जी ऑफ द बॉडी, गामा एम सी स्क्वायर, राइट? सो नू आपका यहाँ से आ गया, एच नू विल बी इक्वल टू गामा एम सी स्क्वायर, एंड नू विल बी गामा एम सी स्क्वायर बाय एच। मास ऑफ द बॉडी, सी वेलोसिटी ऑफ द लाइट, गामा इज व्हाट? वही अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, एच आपका प्लैंक्स कांस्टेंट। तो ये जब आप इसके अंदर रखेंगे और लैम्डा की वैल्यू आप पुटिंग करेंगे एच बाई गामा एम वी, सो आपका ये वैल्यू आ गई। आप इसको सब कैंसिल आउट करेंगे, so you will get Vp as c square by v. So we call this as phase velocity. अभी ये आगे क्लियर होगा कि what do you mean by phase velocity. So we are calling this Vp as the phase velocity. अब fun fact, c square by v मतलब जो velocity जो Vp है, it is greater than the speed of light. न्यूमरेटर में c square आ गया, नीचे v आ गया. So Vp is very very much greater than c. So is it violating the STR? हमने STR में क्या पढ़ा था? Speed of light is absolute and no body can travel beyond the speed of light. So is this violating the speed with the STR principles? So we need to check that. So we need to actually confirm कि ये इसका मतलब क्या है? How did we get this result, right? So we will check it in a few moments. We'll try to find out कि हुआ क्या? Why did we get to this result? Before that, in order to check that, we need to write this wave equation mathematically. कि हमारी जो वेव इक्वेशन है वो क्या है। तो हमको उसको मैथमेटिकली पहले हम फॉर्मुलेट करते हैं, देन वी विल प्रोसीड। सो अब आप मान लीजिए कि आपने एक स्ट्रिंग लिया, ठीक है? ये हम मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन कर रहे हैं। तो अभी अब हमने मान लीजिए आपने एक स्ट्रिंग लिया विच इज स्ट्रेचिंग अलोंग द एक्स एक्सिस, ठीक है? और हमने जब उसको स्ट्रेच जब अब उसको स्ट्रेच्ड अलोंग द एक्स एक्सिस, so we will be observing its vibrations in the y direction, and those vibrations are nothing but the amplitude. जो उसका एम्पलीट्यूड है दैट विल बी अलोंग द वाई डायरेक्शन। जो आपका एम्पलीट्यूड आ रहा है ये आपके अलोंग द वाई डायरेक्शन है। सो नाउ आवर पोजीशन इज सच दैट एट x इज इक्वल टू 0 एट टाइम 0 हमारा एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, राइट? ए एट x 0 हमारा एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है। ये हमने एक सिचुएशन कंसीडर करी है। सो व्हाट इज दिस? दिस इज नथिंग बट अ कोसाइन वेव, राइट? दिस इज नथिंग बट अ कोसाइन वेव विद टाइम।
तो हमने सिंपली इसको नोट कर दिया y इज इक्वल टू a cos 2 पाई न्यू टी. दिस इज द फ्रीक्वेंसी, दिस इज द टाइम. ये आपका बेसिकली cos ओमेगा टी जैसे हम लिख सकते हैं. वेरे ओमेगा क्या होता है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी. एंड व्हाट इज ओमेगा इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी? 2 पाई न्यू. ये तो आपने सब पढ़ा हुआ है. एंड a इज द एम्पलीट्यूड. सो y इज इक्वल टू a cos 2 पाई न्यू टी. तो ये हमने एक सिंपल सा हमने एक मैथमेटिकली फॉर्मुलेशन सा इसका डिनोट कर दिया. सिंपल सा हमने इसको लिख दिया. कोसाइन कोसाइडल फॉर्म है, सो हमने इसको इस तरीके से लिख दिया. नाउ द थिंग विद दिस फॉर्मुलेशन इज कि इट इज सिंपली टेलिंग द पोजीशन ऑफ सिंगल पार्टिकल एट अ टाइम टी ओनली. वो हमें खाली बस एक सिंगल पार्टिकल का एक हमको एट टाइम टी की पोजीशन बता रहा है. लेकिन हमको तो एक जनरल इक्वेशन चाहिए. व्हाट डू यू मीन बाय जनरल इक्वेशन? कि जिसमें पूरा विद वेरिएशन ऑफ एक्स भी हमको दिखे. अब ये तो पूरा हमारी जो स्ट्रिंग है इट इज स्ट्रेच्ड अलोंग द एक्स एक्सिस, राइट? तो हमको तो इसमें एक्स भी चाहिए कहीं. वो एक्सिस के अंदर आ नहीं रहा है. हमें तो भाई सिंपली इसको टाइम के टर्म्स में हमने रिप्रेजेंट कर दिया. कोसाइन फॉर्म है हमारा, दिख रहा है हमको कोसाइन फॉर्म है ये. तो हमने इसको टी के मतलब कोसाइन के टर्म्स में लिख तो दिया टी के टर्म्स में. लेकिन वी नीड अ जनरल फॉर्मुलेशन कि हमको पूरा विद वेरिएशन विद अलोंग द एक्स एक्सिस भी चाहिए. बेसिकली वी नीड एन एक्स कोऑर्डिनेट एज वेल. So how do we do that, right? So how do we do that? Again, simple सा mathematical derivation है इसका, which you can again revise from Pfizer. बहुत simple सा derivation है. कुछ नहीं कर रहे हैं हम लोग. अभी along the x axis आपकी string stretched है, right? आपने इसको झटके दिए. ठीक है, आपने इसको झटके देना शुरू किया और उसके अंदर आपकी वाइब्रेशंस, आपकी वेव्स निकली लाइक दिस. ठीक है. नाउ वी आर अज्यूमिंग कि ये जो वेव्स निकल रही है आपकी, इनकी जो वेलोसिटी है वो वीपी है. ये तो हमने अज्यूम किया हुआ है कि इनकी जो वेलोसिटी है वेव की, इस स्ट्रिंग की, वो आपकी वीपी के बराबर है. ठीक है. एट एक्स जीरो और टाइम जीरो आपके इनिशियल पोजीशन आपकी ये है. एट एक्स जीरो और टाइम जीरो, एक्स जीरो टी जीरो आपकी पोजीशन ये है. नाउ once you start shaking at time 0 and x 0, your wave will look something like this, right? Now, since your velocity of the wave is vp, then at time t is equal to t, this is a position at t is equal to 0. Now at t is equal to t, what will be the distance covered by the wave? Vpt. Since vp is the velocity, so what will be the distance covered by the wave? Vpt, right? So one can deduce that the displacement of y, display जो आपकी जो wave है, the displacement of y at x vp by t, जो आपकी इस position पे जो आपका जो displacement है at time t is equal to t, will be the same as the displacement at x is equal to 0 at time t minus t minus x upon vp. यानी जो initial position थी हमारी, since time interval is nothing but x upon vp, यहाँ इस पोजीशन पे आने के लिए कितना टाइम लगा होगा इसको? x upon vp. x is equal to vp by t. Then what is the time? x upon vp. So we are simply deducing the fact that the displacement at this position is equivalent to the displacement at the initial position, यानी t minus x upon vp. So what we can simply do, ये जो हमारा फॉर्मूला आ रहा है t का, इसमें हम रिप्लेस कर देंगे किससे? किससे? t minus x upon vp से, to give a generalistic formula. So to get the desired formula in wholesome terms, जिसके अंदर हमारा position coordinate भी आ रहा है, so we can simply replace t by t minus x upon vp. Why? Because at x is equal to vp by t at this position, हमारा at any position, the displacement here is equivalent to the displacement at the initial position. So this is what we get. a इज इक्वल टू कॉस 2 पाई नू टी, हमारा पहले वहां पे बट टी था, तो हमने उसको रिप्लेस कर दिया टी माइनस एक्स अपॉन वीपी से. दैट्स इट, हमने कुछ नहीं किया. अब आप ये देख सकते हैं जब हमारा एक्स जीरो है, जब हमारी इनिशियली हमारी ये पोजीशन थी, एक्स हमारा जीरो है, सो वी विल सिंपली गेट दिस फॉर्मूला. हमारा जब एक्स जीरो होगा तो वी विल सिंपली गेट बैक दिस फॉर्मूला, जो हमारा ये फॉर्मूला हमारा ओरिजिनली आया था. So this is a more general formula. So this equation is valid. So we can simply say that this equation now is valid. अगर आपको इसी फॉर्मूले को अगर आपको वेवलेंथ के फॉर्म में लिखना है तो वो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, राइट? आपने सिंपली क्या करना है, आपने इसको नू को अंदर लेना है, नू नू टी इंटू गामा इंटू एक्स नू फॉर वीपी. वीपी का फॉर्मूला, वीपी को आप एलिमिनेट कर देंगे डाल के, तो आपका एक्स बाय लैम्डा का फॉर्मूला आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ लैम्डा. सिमिलरली अगर आपको एंगुलर फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर के फॉर्म में लिखना है, वे एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज व्हाट? ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई नू.
व्हाट इज वेव नंबर, 2 पाई बाय लैम्डा। अगर आपको इन दोनों की फॉर्म में लिखना है, देन अगेन यू पुट इन दीज वैल्यूज हियर, सो आपका ये फॉर्मुलेशन आ जाएगा. So all these equations are nothing but the same form of our wave formula, which is this, the general form. लैम्डा के फॉर्म में ये है, ओमेगा और के वेव नंबर के फॉर्म में ये है. सिंपल, राइट? सो नाउ वी हैव गॉट आर वेव फॉर्मूला, जो हमारी मैटर वेव है. सो वी कैन सिंपली ट्राई टू नाउ रिड्यूस दिस रिजल्ट, जो हमारा ये जो रिजल्ट आया था ये वाला. नाउ वी कैन ट्राई टू रिड्यूस दिस रिजल्ट. ऑलराइट, so we have to understand the concept of group velocity and phase velocity before we deduce that. Why are we getting this? Why are we actually getting this? Ye c square by v. Why is something why we are getting something which is greater than the speed of light? So for that we need to understand the concept of group velocity and phase velocity, and then we can simply deduce the mathematical formulation for this. So अब आपको एक्चुअली ये समझ में आना चाहिए कि देयर इज अ कंसेप्ट बिटवीन इंडिविजुअल वेव्स एंड अ ग्रुप ऑफ वेव्स. सो इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट जो हमारी मैटर वेव्स हैं, दे ट्रैवल एज अ ग्रुप ऑफ वेव्स. सो फर्क होता है ग्रुप की, जो आपकी वेव्स हैं, एक ग्रुप के अंदर आपकी देयर कैन बी इनडेफिनेट नंबर ऑफ वेव्स, राइट? एंड बिकॉज ऑफ दोस प्रेजेंस ऑफ इनडेफिनेट नंबर ऑफ वेव्स, आपके ग्रुप की वेलोसिटी अलग होती है. द जो वेव ग्रुप जो आपका होता है, जिसके अंदर देयर आर लॉट मेनी नंबर ऑफ वेव्स, so this wave group or a wave packet as we can say, इसकी aggregate velocity is different than the individual velocities of the waves. जो वेव्स आपकी उस ग्रुप को बना रही हैं, उस पैकेट को बना रही हैं, उनकी जो वेलोसिटी होगी उससे डिफरेंट होगी आपकी इस होल पैकेट या उस होल ग्रुप की वेलोसिटी, राइट? सो वेव्स ट्रैवल इन ग्रुप्स and the group of waves need not have the same velocity as the individual waves themselves, right? नाउ जो आपकी अब जैसा कि आपको पता है कि भाई आपका जो डी प्रोबेबिलिटी से जो आपकी जो वेव्स हैं, तो उनका जो एम्पलीट्यूड है वो सिंपली आपका रिफ्लेक्ट कर रहा है प्रोबेबिलिटी टू फाइंड द बॉडी एट अ पर्टिकुलर टाइम, जो हमारा वेव फंक्शन कंसेप्ट था. तो इट इज जो आपका उससे जो आपका एम्पलीट्यूड है, इट विल सिंपली डिफाइन द प्रोबेबिलिटी टू फाइंड द बॉडी एट अ पर्टिकुलर टाइम. सो जो हमारी जो वेव इक्वेशन है, जो हमारी जो वेव इक्वेशंस आई हैं, ऑल दीज, so they don't actually give a true picture of the probability, because उसके अंदर आपकी indefinite number of waves हैं with the same amplitude a. अब हमने तो डिफाइन कर दिया कि हमारी जो एक वेव है उसका एम्पलीट्यूड ए है, राइट? अब उसके अंदर हमारी जितनी भी वेवलेंथ बदल रही हो, फ्रीक्वेंसी बदल रही हो, उनका एम्पलीट्यूड तो हमारा ए ही है, राइट? एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है. व्हाट कैन वेरी? द वेलोसिटी. वेलोसिटी कैन वेरी और वेवलेंथ कैन वेरी, व्हाटएवर. एक ही तरीके को, एक ही चीज को आप कैसे भी लिख सकते हैं. सो जो आपकी अब इक्वेशंस हैं, सो दे आर दे डू नॉट गिव द ट्रू पिक्चर ऑफ प्रोबेबिलिटी, बिकॉज इसके अंदर इनडेफिनेट आपके वेव पैकेट के अंदर आपकी इनडेफिनेट नंबर ऑफ वेव्स होंगी विद द सेम एम्पलीट्यूड ए. सो इट वाज पोस्टुलेटेड, टू मेक अ लाइफ सिंपल, इट वाज पोस्टुलेटेड दैट फॉर अ मूविंग बॉडी, जो वेव्स हैं आपकी, वो एक ग्रुप में मूव करती हैं, वेव पैकेट्स में आप ग्रुप में मूव करती हैं, लाइक दिस, like this. So this is actually a superposition of lot many waves. तो ये देख, तो ये एक वेव रही है, लेकिन एक्चुअली दिस इज अ सुपरपोजिशन ऑफ लॉट मेनी indifferent number of waves. So all these waves have different amplitudes, right? All these waves have different amplitudes. जिनका जो aggregate है, that gives you the real picture of finding the the likelihood to determine the position and the coordinates of the body. So we'll build upon this now. So one can describe the wave group mathematically as a superposition of different waves of different wavelengths. So this superposition results in the variation in amplitude which defines the group shape. अब ये कैसे हो रहा है, ठीक है? अब मैं आपको बता दूं ये हो कैसे रहा है. नाउ इफ आपको याद होगा, आप लोगों ने अपने शायद स्कूल में भी पढ़ा होगा द कंसेप्ट ऑफ बीट्स. आपको याद है कंसेप्ट ऑफ बीट्स क्या था? anyone can remember? Can anyone tell me what was the concept of beats? वेव्स के अंदर, वेव्स ऑसिलेशंस के अंदर, anyone please? What was the concept of beats? सर वो एक लास्ट टाइम में पढ़ा था आई थिंक, तो उसमें एक कांस्टेंट
टाइम इंटरवल पे एक फ्रीक्वेंसी की वेव्स आती हाँ, है। तो वो वेव आपकी वो कैसे आ रही हैं बीट्स? जैसे अभी हमने यहाँ पे हमने तो डिफाइन कर दिया कि आपका वेव पैकेट है। वेव पैकेट के अंदर हमारा हमको ये पता है कि इनडेफिनेट नंबर ऑफ वेव्स होंगी और उनका एम्पलीट्यूड सेम तो होगा नहीं, सबका अलग अलग एम्पलीट्यूड होगा, सबका अलग अलग वेलोसिटीज होंगी एटसेट्रा एटसेट्रा। और उनके एक अग्रीगेट सुपरपोजिशन से हमारा एक जनरल वेव पैकेट बन रहा है जिसका एक एम्पलीट्यूड होगा एंड दैट इज गिविंग अस अ ट्रू पिक्चर ऑफ द प्रोबेबिलिटी एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। तो हमने अभी ये डिफाइन कर दिया। अब मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि इसको हमें कोरिलेट करना है बीट से। तो आपको मतलब आप किसी को याद आ रहा है कि बीट्स क्या थी? यू आर राइट, वो पर मिनट हमारी बीट आती हैं मान लिया, लेकिन वो एक्चुअली में आ कैसे रही है? वो ऐसे आ रही हैं कि आपका जब अभी तो हम चलिए अभी हम बस दो वेव का एग्जांपल लेते हैं। सो व्हाट वर बीट्स इफ two waves which are having nearly the same amplitude but different frequencies, right? If two waves that are having the same amplitude but different frequencies are tried to superimpose, are they try to be superimposed together, then what we get is a resulting wave having the aggregate of the two frequencies, right? What we get is a single wave having an aggregate or an the mean of the two frequencies, and that is actually your beat। आपकी मान लीजिए आपकी एक आपकी वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी 200 हर्ट्ज है। दूसरी आपकी मान लीजिए आपकी एक बीट है जिसकी वेव है जिसकी आपकी फ्रीक्वेंसी 204 हर्ट्ज है। तो अगर हम इनको सुपर इम्पोज करेंगे, सो यू विल गेट a single wave जिसकी फ्रीक्वेंसी 202 हर्ट्ज होगी, राइट? सो आई होप यू रिमेंबर ऑल दिस कि दिस इज द कंसेप्ट ऑफ योर बीट्स। सो आपको इंडिविजुअल जो आपकी वेव्स होती हैं उनकी फ्रीक्वेंसी से अलग आपको वेव मिलेगी जिसकी जो आपकी फ्रीक्वेंसी होगी वो उनका एग्रीगेट होगी। So this was how you actually try to find out the mathematical formulation उनका बीट्स का और उनका ही फिर आपका वेव इक्वेशन उनकी बीट्स की। So we are simply applying that concept here. So वही कंसेप्ट है आपका कि आपका जो वेव ग्रुप है उसके अंदर आपकी सुपरपोजिशन और डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव्स हैं और फॉर डिफरेंट वेवलेंथ्स, ठीक है? डिफरेंट वेवलेंथ्स का मतलब क्या हुआ? डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। So one can describe the wave group mathematically as superposition of different waves of different wavelengths. Now, this superposition will result in the variation of amplitude, which defines the group shape. जो आपका ये ग्रुप शेप है आपका this, ये आपका वेरिंग एम्पलीट्यूड किसी का हो सकता है। सो नाउ अगर आपकी जो इंडिविजुअल वेव वेलोसिटीज हैं इन द ग्रुप, जो आपकी मान लीजिए आपकी 10 वेव्स हैं एक ग्रुप के अंदर, उन 10 वेव्स की वेलोसिटी सेम है, देन जो आपका वेव ग्रुप होगा उसकी वेलोसिटी सेम हो सकती है एज द इंडिविजुअल वेव्स देमसेल्व्स। दैट इज योर वो आपकी होगी फेज वेलोसिटी। मगर आपकी वेलोसिटी है वो डिफरेंट है, आपकी इंडिविजुअल वेव्स की वेलोसिटी मान लीजिए डिफरेंट है, सारी अलग अलग हैं इंडिविजुअल, देन दे ऑब्वियसली दे विल नॉट प्रोसीड टुगेदर। तो आपकी जो ग्रुप की वेलोसिटी होगी इट विल बी डिफरेंट फ्रॉम द इंडिविजुअल वेलोसिटीज। तो दिस इज द एनॉमली जो हमारी ऊपर अभी आई थी। तो वी विल ट्राई टू फाइंड आउट कि वो अनोमली कैसे हमारी आई थी, जो सी स्क्वायर में भी हमारा फॉर्मुलेशन आ रहा था, तो वो क्यों आया था, तो वो भी हम आगे मैथमेटिकली देखेंगे। नाउ इन ऑर्डर टू डिटरमिन द फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी, आपका ये बीट्स का कंसेप्ट लगाया हुआ है हमने बाइजर के अंदर। सो वी आर नॉट गोइंग इनटू द मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन फॉर दैट। वो आपका जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपकी उसके अंदर जो सिम्बाइजर के अंदर आपका जो आपका मैथमेटिकल जो डेरिवेशन है उसके अंदर इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द पार्ट ऑफ योर सिलेबस। लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ हाउ वी गॉट दीज फॉर्मूले ऑफ ग्रुप वेलोसिटी एंड फ्लो वेलोसिटी, तो आप वो रेफरेंस के लिए देख सकते हैं। कुछ नहीं हुआ है, बीट्स की थ्योरी पे बिल्डअप करके दे हैव टेकन सिंपली टू वेव्स and those two waves are differing in their frequencies, basically wavelengths, and then they have tried to find out, वो आप बीट्स का कंसेप्ट लगा के आप देख सकते हैं कि उन्होंने मैथमेटिकली पूरा उसको सिंप्लीफाई कर करके उन्होंने डिराइव करी है ये आपकी इक्वेशंस। सो वी आर नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स हाउ वी गॉट दीज बिकॉज दोस आर नॉट इम्पॉर्टेंट, बट येस यू नीड टू रिमेंबर दीज फॉर्मूले फॉर योर न्यूमेरिकल पर्पसेस, राइट? तो आपको ये पता होना चाहिए। सो वी विल सिंपली राइट आउट द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर ग्रुप एंड फेज वेलोसिटीज। सो इंडिविजुअल वेव की जो वेलोसिटी है जो आपका वेव पैकेट बना रही हैं, सो वो वेव वेलोसिटी आपकी डिनोट की जाती हैं ओमेगा बाय के, where omega is nothing but your angular frequency, this,
This is your angular frequency omega, and k is nothing but your wave number. So omega is given by 2 pi nu. Nu is the frequency of the wave. And what is the wave number? 2 pi by lambda, where lambda is the de Broglie wavelength of the body. So this is your lambda by k. Vp, phase velocity, is given by lambda by k, and group velocity is given by d omega by dk. Simply differentiation of this, d omega by dk. Group velocity is given by this. So bas ab ye you should know this. We're not deriving how we got there mathematically, not important from the part of the syllabus, but from the point of view of your numerical purposes, आपको ये formulae पता होने चाहिए, right? So depending upon the variation of phase velocity with the wave number for a particular situation, जो आपका group velocity है आपकी this, it can be either lesser or greater than the phase velocity of the member wave. Depending upon the variation of phase velocity with the wave number for a particular situation, आपकी ये देखिए wave number पे dependent है आपकी wave velocity. So depending on how your frequency, angular frequency or wave, or basically this phase velocity is varying with k, your Vg, which means the differentiation of omega, so it can have different values. Either it can be greater or lesser than the phase velocity. So if phase velocity and ये आपकी जो individual velocities हैं wave packet की, if they are same in a wave group, then the group and the phase velocity will be same. For example, light wave. कैसे? आपकी लाइट वेव्स हैं. अब लाइट वेव्स के अंदर आपकी डिफरेंट जो वेवलेंथ्स हैं, आपकी एक्स रेज हैं, गामा रेज हैं, यूवी रेज हैं, विजिबल रेडिएशन है, इंफ्रारेड है. सो ऑल दीज आर डिफरेंट वेवलेंथ्स, राइट? है तो ये डिफरेंट वेवलेंथ्स की, लेकिन इन सबकी वेलोसिटी सेम है, वेलोसिटी ऑफ लाइट. तो अगर आप कोई भी लाइट पैकेट ऐसा कोई भी ऐसा वेव पैकेट बनाएंगे जिसके अंदर आप एक्स रेज भी डाल दें, गामा रे भी डाल दें, यूवी रेज भी डाल दें. मान लीजिए आपने एक ऐसा वेव पैकेट बनाया जिसके अंदर ऑल दीज वेव्स और डिफरेंट वेवलेंथ्स आर ट्रैवलिंग. एक्स रेज भी हैं, गामा रेज भी हैं, और आपकी लाइट भी है. अब individually all these waves have the same velocity of light, so their group velocity will be the same as your individual velocity c. This is the concept कि अगर आपका जो वेव पैकेट है उसके अंदर जो आपकी इंडिविजुअल वेव्स हैं, अगर उन सबकी वेलोसिटी सेम है, देन ग्रुप वेलोसिटी विल बी इक्वल टू द फेज वेलोसिटी. बेसिकली फेज वेलोसिटी इज द इंडिविजुअल वेलोसिटी. तो उस केस में आपका ग्रुप वेलोसिटी विल बी इक्वल टू द फेज वेलोसिटी. और जहां पे वो अलग अलग हैं, if individual waves are varying in their velocity because of their different wavelengths, then we can use these mathematical formulations to determine the group velocity and the phase velocity. So now this is a generalistic formula, Vp omega by k, Vg d omega by dk. तो अब डी ब्रॉगली के केस में हम अगर निकालना चाहें कि हमारा वैल्यू क्या आ रही है, जो कि हमारी प्रिसाइसली ये वैल्यू जो हमारी सी स्क्वायर बाय लैम्डा जो हमारी आई थी, ये हमारा सी जो वी आई थी, तो ये हमारी डी ब्रॉगली के केस में थी. सो इफ वी सिंपली ट्राई टू पुट इन द फॉर्मूलाज, राइट? ओमेगा हमारा क्या है? 2 पाई नू. नू हमारी क्या थी? ये व्हाट वाज आवर नू? ये हमारा नू आया था फॉर अ डी ब्रॉगली बॉडी. हमारा नू क्या आया था? गामा एम सी स्क्वायर बाय एच. एच नू इज इक्वल टू गामा एम सी स्क्वायर को हमने इक्वेट किया था, हमारा नू ये आया था. सो अगर हम सिंपली इसको यहाँ वापस से पुटअप करें, 2 पाई नू, 2 पाई गामा एम सी स्क्वायर बाय एच. तो दिस इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ डी ब्रॉगली वेव. ये जो ओमेगा है, दिस इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ डी ब्रॉगली वेव. ये आ गया. के हमारा क्या हुआ? 2 पाई बाय लैम्डा. लैम्डा हमारी अगेन ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ थी, एच अपॉन गामा एम वी. तो ये हमारी 2 पाई गामा एम वी बाई एच आ गया. अब हमारे पास ओमेगा है फॉर अ डी ब्रॉगली वेव, हमारे पास के है फॉर अ डी ब्रॉगली वेव, दिस. अगर हम अपनी इन वैल्यूज को फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी के लिए पुटअप करें, सो वी गेट दिस. Vg will be equal to the velocity of the moving body only, right? तो जो आपकी जो ग्रुप वेलोसिटी है, इट विल बी फॉर अ डी ब्रॉगली वेव. सो रिमेंबर, फॉर अ डी ब्रॉगली वेव जो हमारी ग्रुप वेलोसिटी आ रही है, इट विल बी द सेम एज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी. बट जो हमारी फेज वेलोसिटी आ रही है, वो जस्ट लाइक द प्रीवियस केस वो यही आ रही है, सी स्क्वायर बाई वी. सो एज आई आस्क्ड, इज इट वॉलेटिंग द एस टी आर? नो. वाई? बिकॉज मोशन ऑफ द वेव ग्रुप इज कंसिडर्ड. हमारी जो मूविंग बॉडी है उससे एसोसिएटेड जो डिफरेंट वेव्स हैं, तो उनका वेव पैकेट मोशन वी कंसिडर, नॉट द इंडिविजुअल वेव्स, राइट? एंड दैट वेव पैकेट इज एक्चुअली मूविंग विद द वेलोसिटी v, व्हिच इज लेस देन द वेलोसिटी ऑफ लाइट. तो फिजिकल सिग्निफिकेंस इसी का है, इसका नहीं. So even though we are getting a phase velocity to be equivalent to very much higher than the velocity of light, c square by v, very much higher than the velocity of light,
लेकिन इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। फिजिकल सिग्निफिकेंस जिसका है वो ग्रुप वेलोसिटी का है, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी पोस्टुलेटेड इन द बिगिनिंग वी हैव पोस्टुलेटेड दैट जो हमारी वेव्स हैं दे ट्रैवल इन ग्रुप, लाइक इंडिविजुअली ट्रैवल नहीं करती हैं, दे ट्रैवल इन पैकेट्स लाइक दिस, they travel in packets like this, and this packet has lot many superposition of lot many waves, individual waves. डी ब्रॉगली वेव ऐसा, डी ब्रॉगली हमारा ऐसा केस है डी ब्रॉगली वेवलेंथ का, जिसके अंदर हमारी जो ग्रुप वेलोसिटी आती है वो इंडिविजुअल वेव की वेलोसिटी के बराबर ही आती है। बट दिस इज अ जनरलिस्टिक फॉर्मूला। कल को आपको कोई भी आपको एक वेव इक्वेशन दे दी जाए और आपको ये बोला जाए जिसके अंदर आपको ओमेगा स्पेसिफाइड है, के स्पेसिफाइड है, और आपको बोला जाए कि आप उसका फेस वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी निकालिए, तो आप ऐसे ही निकालेंगे। लेकिन डी ब्रॉगली के केस में, डी ब्रॉगली वेवलेंथ के केस में, इफ वी सिंपली पुट इन दीज वैल्यूज, देन व्हाट वी गेट इज दिस। So, de Broglie wave group associated with the moving body travels with the same velocity as the velocity of the body. Vg is equivalent to V. और लेकिन Vp c square by V है, so it is of no physical use, no physical significance. That's it. So, anyone has a doubt? इसको understand में problem है कि what is group velocity, what is phase velocity? Phase velocity, I will again repeat, is the individual wave velocity, and group velocity is nothing but the velocity of the wave packet. और उस वेव पैकेट के अंदर कई सारी फेज वेलोसिटीज हैं, तो अगर वो सारी फेज वेलोसिटी सेम है देन द ग्रुप वेलोसिटी विल बी द सेम एज द फेज वेलोसिटी, वरना इट विल बी डिफरेंट। हाउ डिफरेंट? ऐसे वो आप वो मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन में न्यूमेरिकल्स में आपको दे दूंगा, तो आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा जब आप इसको ऐसे पुट इन करेंगे। सो एनीवन हैज अ डाउट कि ग्रुप वेलोसिटी क्या है, फेज वेलोसिटी क्या है, हाउ डिड वी अराइव एट द मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ वेव इक्वेशन? एनीवन हैज अ डाउट? Anyone? How did we arrive at this? Anyone? Anyone has a doubt? रिपुंजय समझ में आया? Anyone? Yes, नो sir. सर, किसको समझ में नहीं आया? नहीं है सर, डाउट नहीं है। अरे डाउट नहीं है, ओके। सो बस आपको ये समझ लेना है कि हमारा जो मतलब हमारा जो वेव ग्रुप है दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। हमारी जो मैटर वेव्स हैं दे ट्रैवल इन ग्रुप्स, एंड उस ग्रुप की जो वेलोसिटी होती है इट इज डिपेंडेंट ऑन द सुपरपोजिशन ऑफ वेरियस वेव्स, राइट, इंडिविजुअल वेव्स। अगर उन सबकी वेलोसिटी सेम है देन आवर ग्रुप वेलोसिटी विल बी द सेम एज द फेज वेलोसिटी, और अगर हमारी फेज वेलोसिटी सारी डिफरेंट है देन देयर विल बी अ डिफरेंस बिटवीन द ग्रुप वेलोसिटी एंड द फेज वेलोसिटी। सो एक्चुअली में हमारा जो आंसर या हमारा जो रिजल्ट आता है, बिकॉज इट कैन बी आस्क्ड थ्योरेटिकली कि इज द डी ब्रॉगली फेज वेलोसिटी violating STR, then you will say no, because even though we are getting this answer, but हमारी group velocity is of physical significance because we have postulated that matter waves move in groups, right? So the डी ब्रॉगली जो वेव ग्रुप है हमारा, जो हमारा मैटर वेव, जो डी ब्रॉगली मैटर वेव्स है, तो उसका जो वेव ग्रुप है उसकी वेलोसिटी तो हमारी इज इक्विवेलेंट टू द वेलोसिटी ऑफ द मूविंग बॉडी, which is very very much less than c. So it is not violating STR. So it can be asked in the theoretical part of exam में, so you should write this, right? So uh, we only have now 2 or 3 topics of unit 3. So tomorrow we will finish up unit 3. We only have particle diffraction and Heisenberg's uncertainty principle. So quickly tomorrow we will finish those topics, and then we'll be uh, finished with unit 2. So on Sunday या फिर Saturday को ही मैं आपको आपका इस यूनिट का भी असाइनमेंट दे दूंगा, अगेन अराउंड 8-10 क्वेश्चंस न्यूमेरिकल बेस्ड और 12 क्वेश्चंस, ताकि आप लोग थोड़ा सा अपना इसकी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लें। एंड देन आई विल ट्राई टू गिव यू वन बिग असाइनमेंट आपका थियोरेटिकल, जब मैंने आपको सब बताया था जो आपका DA2 का जो पार्ट होगा सब्जेक्टिव असाइनमेंट आपका, वो मैं आपको आपके जस्ट सीटी से पहले ही दे दूंगा आपके, ताकि वो 2 यूनिट्स आप लोग अच्छे से अपने एग्जाम्स के लिए रिवाइज कर लें। आप लोगों का शेड्यूल आ गया सीटी का क्या है? No, sir. अभी नहीं आया. हमारा आ चुका है बाय द वे, फैकल्टी ऑफ साइंस का आ गया है। सो मतलब वी हैव गॉट व्हाट ऑन व्हाट डेट वी हैव आवर एग्जाम्स। सो रिपुंजय या फिर जो शीतल मनी जो आपके CR हैं, तो रिपुंजय तुम एक काम कर लेना, इमीडिएटली वंस यू ऑल रिसीव योर CT शेड्यूल जस्ट लेट मी नो कि हमारा ये एग्जाम किस दिन है, ऑलराइट? इतना जस्ट मेक श्योर कि यू लेट मी नो। Okay, sir. आप लोगों का आने ही वाला होगा, 5th से स्टार्टिंग है सीटीज की, तो दैट इज देयर एग्जाम जो है वो 5th से स्टार्ट हो रहे हैं, 5th to 12th। तो आप लोगों का हमारा जब 2PHM 281 होगा तो यू जस्ट लेट मी नो कि हमारा किस दिन पड़ रहा है, ऑलराइट?
सो दैट इज वाई अभी मैं आपको एक असाइनमेंट दे दूंगा कल, ठीक है, मतलब कल या परसों, कल तो नहीं परसों दे दूंगा, ऑब्जेक्टिव बेस्ड, ठीक है, जो आपका खाली इसी यूनिट का होगा। एंड देन नेक्स्ट वीक आपको एक सब्जेक्टिव असाइनमेंट दे देंगे, सो दैट यू आर एबल टू रिवाइज STR and particle properties of waves and this wave properties of particles of kuch thoda part. All right. So hopefully we will have one class next week. At least we will have one class. At least we'll have one class, ताकि हम यूनिट जो आपकी जो 3 की जो पोर्शंस हैं वो भी एटलीस्ट शुरू कर दें। ये आइडियली आवर टारगेट इज टू गिव 2.5 यूनिट्स फॉर द सीटीज, राइट? तो वील ट्राई टू एटलीस्ट हैव वन क्लास जिसके अंदर हम थोड़ा सा पोर्शन टेकअप कर पाएं यूनिट 3 का आपका, बिकॉज टुमारो विल बी फिनिशिंग अप विद यूनिट 2। ओके ओके सर। ओके। सो आप इसको ये जो पार्ट है पूरा ये बाइजर से है। सो फॉर दिस पार्ट वी आर नॉट फॉलोइंग द अबादनुलू बुक, सो यू कैन स्टार्ट रीडिंग बाइजर बुक प्लीज। रिवाइज करना शुरू कर दीजिए। तो मैं आप जो उसके सॉल्ट एग्जाम्पल है बाइजर के, वो भी आप प्लीज लगाना शुरू कर दीजिए। तो बाकी असाइनमेंट तो मैं आपको वीकेंड पे दे ही दूंगा। ऑल राइट, so we'll meet tomorrow in the morning then. Tomorrow in the morning we'll finish the unit 2. All right, ओके सर। only small topics are remaining, वो हो जाएंगे कल आराम से। All right, कल मिलते हैं। सर सीटी के लिए सिलेबस क्या रहेगा? सीटी के लिए सिलेबस आपका बेटा अब वो डिस्कस कर लेंगे सारे। मुझे अभी पता नहीं है कि स्टेटस बाकी बैच सेक्शंस में क्या है। आइडियली तो 2.5 यूनिट्स ही होती हैं, तो STR होगा आपका कल तक हम जो कर रहे हैं वो, और प्रॉब्ली थोड़ा सा कुछ हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ें, लेकिन अल्टीमेटली हम आपको बता देंगे, वो मैं क्लास अनाउंस कर दूंगा, डोंट वरी। आप प्लीज़ ये रिवाइज करना शुरू कर दो। STR और जितना हमने आज तक पढ़ा है रिवाइज करना शुरू कर दो। मैं वीकेंड तक आपको ये सारी स्क्रीन रिकॉर्डिंग और जो ये PPT नोट्स है ये भी शेयर कर दूंगा, ठीक है? लेकिन आप बाइजर से और आबादनुल की बुक से पढ़ना शुरू कर दीजिए आप लोग, ठीक है? ओके सर। ओके।